Hello students. In previous videos we discussed about how to form the pair of linear equation in two variables. Today we are going to take some examples, that is exercise questions. Right? In that we are going to form the equations, that means forming the equation means algebraic situation, representing the algebraic situation. And drawing the graph means it is a graphical or geometric representation. Means two things we have to show, but we are not going to solve it either by algebraic method or graphical method. We are going to formate two equations. दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके सॉल्यूशंस फाइंड नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस. Now if the question is related to ages, means we are not going to find ages. If the question related to digits, we are not going to form the that is 2-digit number or 3-digit number. Right? We are going to form the equations only, and we are going to how to draw the graph, how to find the table of values we are going to see. We see the exercise number 3.1. First question. Aftab tells his daughter, two persons are there, Aftab and his daughter. Means to which things we are going to suppose, that is the present age of Aftab as x years and present age of his daughter as a y years. Right? Two ages we are going to suppose in this way. At the start, let Aftab's present age, shortly I am writing here, but you have to write let Aftab's present age be x years and his daughter's present age be y years. Now by first condition, from first condition, according to first condition, anything you can write. By first condition, the statement is like this. They are going to provide you two statements, and for one statement we are going to form one equation. For second statement we are going to form the second equation, but no connection between those two statements. Those two statements we are going to consider separately. Now first statement, Aftab tells his daughter 7 years ago, means Aftab present is x. 7 years ago his age was x minus 7 and his daughter's age y minus 7. 7 years ago Aftab's age x minus 7, his daughter's age y minus 7, means we are going to relate one equation between these two quantities, x minus 7 and y minus 7. According to the statement, Aftab's present age Aftab tells his daughter 7 years ago, means x minus 7. Right? 7 years ago I was. He's telling that 7 years ago means x minus 7. Right? For equal to we are going to use was here, क्योंकि past में है तो was यहाँ आएगा. अगर future का statement होता तो will भी आएगा, present रहा तो is रहेगा. तो Aftab tells his daughter 7 years ago my age was 7 times as you were then. मतलब 7 साल पहले आप जितने एज के थे और मेरा एज 7 साल पहले का 7 टाइम्स आपके 7 years पहले के एज के इक्वल में रहेगा. तो इक्वेशन विल बी x minus 7 is equals to 7 in bracket y minus 7. First statement was like this, just by first condition. 7 years ago I was 7 times you was then. मतलब आप 7 साल पहले जितने एज के थे और मेरा एज उसके 7 टाइम्स होगा. If we solve it, x minus 7 is equals to 7y minus 49. So x minus 7y is equals to minus 42. This is the first equation. Now by second condition, from second condition, according to second condition, for the now second statement, also 3 years from now, अब present age आफ्ताब का x है. 3 years from now, after 3 years, अब आफ्टर 3 years आफ्ताब का एज. अब ये एज इसका ये स्टेटमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता है. वो फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर.
उसके बारे में सोचना नहीं कि 7 साल पहले फिर वहाँ से 3 years क्या, नहीं. जस्ट वी हैव टू कंसिडर दीज टू स्टेटमेंट सेपरेटली. बाय सेकेंड कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन का कोई रोल नहीं रहता, राइट. इन सेकेंड कंडीशन 3 years फ्रॉम नाउ मतलब x प्लस 3 years. What is saying? 3 years from now I shall be 3 times I shall be 3 times as old as you will be. मतलब 3 साल बाद आपका एज जितना रहेगा, 3 साल पहले मेरा एज आपके एज के 3 times रहेगा. तो 3 years from now my age shall be 3 times your age will be. मतलब आपके 3 years के बाद में जो एज रहेगा उसके 3 times. मतलब x plus 3 is equals to 3y plus 9. तो this is equals to x minus 3y is equals to 9 minus 3. This is equals to x minus 3y is equals to 6. This will be the second equation. X plus 3 is equals to 3y minus 3 3 is 9. If we transpose this that side, x minus 3y is equals to 6. This is the second equation. और ये जो आता है, this is algebraic situation. This is called the algebraic situation. Algebraic situation के हेडिंग के अंडर ये स्टेटमेंट आता है. मीन्स ये दो इक्वेशंस आपको फॉर्म करना है. दिस पार्ट अब क्वेश्चन पूरा आई विल रीड. Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Now this statement is over. Means we have formed one equation according to that. Second one, 3 years from now I shall be. 3 years from now means 3 years. आफ्ताब का भी एज निकालना, उसके डॉटर का भी 3 years के बाद में. आफ्टर 3 years भी बोलते हैं. और ये 7 years एगो को बिफोर 7 years भी बोलते हैं, राइट. तो 3 years फ्रॉम नाउ को क्या बोलते हैं? आफ्टर 3 years बोलते हैं. 3 years हेंस बोलते हैं. हेंस का मतलब भी आफ्टर 3 years ही कंसिडर करना. तो x plus 3 is equals to 3 times y plus 3. If we solve, we'll get the final equation. This comes under the heading algebraic situation. अब complete question. I shall be 3 times as old as you will be. Right? Represent this situation algebraically and graphically. ये जो रिप्रेजेंटेशन अपन ने किया है ये algebraic representation बोलते हैं. Means forming the equation. जहाँ तक इक्वेशन फॉर्म करके रखना उसको algebraic situation बोलते हैं, राइट. नाउ सेकेंड पार्ट जो है अब ग्राफिकल या ज्योमेट्रिक सिचुएशन. अब ग्राफिकल और ज्योमेट्रिक सिचुएशन का मतलब क्या होता है? अब इसका अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है. अब ग्राफ के लिए आई विल राइट दिस टू इक्वेशन. -42 is the first equation and second one x minus 3y is equals to 6. This is the second equation. These are the two equation. अब जो अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसको ग्राफिकल सिचुएशन या ज्योमेट्रिकल सिचुएशन बोलते हैं, राइट. ग्राफिकल सिचुएशन या ज्योमेट्रिकल सिचुएशन. अब नाउ ग्राफिकल सिचुएशन. पहले अलजेब्रिक सिचुएशन, ग्राफिकल सिचुएशन. अब ग्राफिकल सिचुएशन में फ्रॉम 1 अब फर्स्ट इक्वेशन लेना x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -42 or you can take this 7y -42. We have transposed this -7y that side. Now we have got this. We are writing, yeah, we are expressing x in terms of y. तो एक वेरिएबल के इन टर्म्स में दूसरे को एक्सप्रेस कर लेना. नाउ टेबल ऑफ वैल्यूज. अब टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड करना. x y x comma y, राइट. चूज द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. y के वैल्यूज ऐसे चूज करना जो दोनों के नियरली वैल्यूज आने चाहिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने x की वैल्यू 1 चूज किया फॉर एग्जांपल, या y की वैल्यू 1 चूज किया, राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल उसको सपोज करना डिजायर्ड वैल्यू. मन से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं आप, राइट. अगर सपोज इफ वी टेक y इज इक्वल्स टू 1 अगर अपन कंसिडर किया y की वैल्यू, इफ वी सब्स्टिट्यूट इट विल बिकम माइनस, बिकॉज 42 माइनस 7. तो आपको यहाँ पे
35। अब देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, इसलिए y की वैल्यू ऐसे चूज करना जो दोनों में x एंड y की वैल्यू क्लोजली आना चाहिए, अदरवाइज ग्राफ जब ड्रॉ करते तो स्केल का प्रॉब्लम हो जाता। तो दैट्स व्हाई चूज द वैल्यूज इन सच वे दैट दोज टू वैल्यूज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं ना, एक आ रहा है 0 और दूसरा आ रहा है 100, ये तो बहुत डिफरेंट वैल्यूज हो गए है ना, बहुत ज़्यादा गैप हो गया दोनों में। तो दैट्स वाई वी चूज द वैल्यू ऑफ y, सपोज 6 चूज किया, 6 7 42, 42 माइनस 42 0 आ जाएगा। सपोज इफ वी चूज वैल्यू ऑफ y एज अ 5, 5 चूज किया, 7 5 35, तो x इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट 5 माइनस 35 माइनस 42 अगर कंसिडर करेंगे इट कम्स -7, -7 और ये 35 माइनस, तो यहाँ पे -42। वन मोर वैल्यू, कम से कम 3 पेयर्स ऑफ x एंड y चूज करना, या 3 सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। सपोज आपने वैल्यू 7 चूज की, 7 7 49, 49 प्लस 49 माइनस 42 दैट गिव्स यू 7। तो वैल्यूज आर 0,6 माइनस 7,5 and 7,7. So in this way we got the 3 solutions. We are going to plot these points on the graph. I will write these points aside because we don't have that much space on the board. Okay, this is the first table of value. For one equation we are going to get one table of values. For the first 0,6, 1 point, minus 7,5 second, and third one 7,7. Now we are going to see the second equation. Second equation, x plus 3 is equals to 3 times y plus 3. What do we have got then? X minus 3y is equals to 3y plus 9. That means second equation was, now from second equation, from equation number 2, that is x minus 3y is equals to 6. This was the second equation. ऑलरेडी अपन ने रब कर दिया था, इसलिए और एक बार अपन इसको इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3y plus 3 ट्रांसपोज करो तो यहाँ पे 6, तो x minus 3y, दिस वाज द सेकेंड इक्वेशन। अगेन टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर दिस इक्वेशन x, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 6 माइनस प्लस 3y। किसी भी वेरिएबल को ट्रांसपोज करते, बट जिसका कोएफिशिएंट 1 है ना उसको ट्रांसपोज मत करो, कीप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 3 है तो डोंट ट्रांसपोज दिस, डोंट कीप टू द लेफ्ट हैंड साइड, ट्रांसपोज दैट साइड। ओके, नाउ दिस इज y, x, y. Now we are going to choose the values, desired values for y. अगर सपोज y की वैल्यू, अगर अपने एक वैल्यू, अगर y की वैल्यू -1, डोंट कंसिडर कि एजेस माइनस में कैसे रहते हैं। रिमेंबर दैट दीज आर द रेफरेंस पॉइंट्स रहते हैं, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव अब ले सकते हैं आप। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो ग्राफ्स का जो रहता है वो एजेस रहते हैं, इसलिए वो ग्राफ डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव साइड रहती है, पॉजिटिव ग्राफ तुम्हारा डेफिनेटली इधर ही इंटरसेक्ट करता है एजेस के क्वेश्चन में। ये नेगेटिव में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा एजेस के लिए, डिजिट्स के लिए। ओके, जो एक्स एंड वाई अपन सपोज डिजिट वाला क्वेश्चन ले तो एक्स एंड वाई, वन इज यूनिट्स प्लस डिजिट रहता है टेंस प्लस, वो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, जिसके आंसर अगर सपोज कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल ग्रेप्स है तो डेफिनेटली वो ग्राफ आपको इधर कौन से भी क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, डेफिनेटली इट विल इंटरसेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज पॉजिटिव रहते हैं ना वैल्यूज। अब कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल नेगेटिव कैसे कंसीडर करेंगे, दैट्स व्हाई वो ग्राफ कभी भी पॉजिटिव आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये रेफरेंस पॉइंट्स, वो पॉइंट्स इधर के भी हो सकते हैं, यहाँ के भी हो सकते हैं, इसलिए जस्ट डोंट कंसीडर दैट कि अपन नेगेटिव वैल्यूज कैसे लेना। तो चूज द वैल्यूज ऑफ y इन सच वे दैट x एंड y में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। सपोज इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ y एज -1, इट बिकम्स 6 माइनस, इट विल बी 3। इफ वी चूज द वैल्यू ऑफ y एज 0, अगर 0 पुट किया 3 into 0 0, it will be 6, and if we take the value as a suppose -2, it comes 0 because
3 into minus 2, that gives you minus 6, plus 6, that gives x will be 0. So 3 comma minus 1, 6 comma 0, and 0 comma minus 2. For first graph, these are the points. For second graph, 3 comma minus 1, 0 comma 6 comma 0, and 0 comma minus 2. I will wrap this part. Now we are going to draw the graph for. Means we are going to plot these points on the graph. X dash, y dash, 0, 1. See positive value x coordinate चेक करो. x coordinate में -7 टू द लेफ्ट हैंड साइड चाहिए. लार्जेस्ट वैल्यू चूज कर लेना 7. तो 3 और 4 5 6 और 7. और नेगेटिव साइड में x coordinate चेक करो. It will -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Now second, y coordinates में y coordinate में लार्जेस्ट वैल्यू है पॉजिटिव के साइड में सेकेंड 7 है, पॉजिटिव की वैल्यू साइड में 7 है. तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा. We'll extend this. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. अब ग्राफ पे ड्रॉ करो, एग्जैक्टली आएगा. नेक्स्टली नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4. Okay, sufficient, no problem. Now we are going to plot this 0, 6. This is that point. पहले तीनों पॉइंट्स फर्स्ट ग्राफ के लिए ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ कर देना. सेकेंड -7, 5, -7, 5, पॉजिटिव साइड में 5. It should come here somewhat. And nextly 7, 7. 7, 7. It comes here. रिमेंबर वन थिंग, ये तीनों जो ग्राफ रहते हैं वो एक लाइन में आना मस्ट रहता है, याद रखना. 7, 7 ये कहीं तो यहाँ पे तो कहीं तो है. तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आना. अब एग्जैक्टली ड्रॉ करो ग्राफ पेपर पे. यू गेट एंड राइट डाउन दैट इक्वेशन. जो इक्वेशन था पहले अपना, वो इक्वेशन लिख देना इस पे हॉरिजॉन्टली. ओके, अगर स्पेस नहीं रहा तो एरो करके इक्वेशन लिखो, नो प्रॉब्लम. नाउ सेकेंडली 3, -1. 3, -1, it comes here. Second 6, 0. 6, 0, it comes here. Secondly 0, -2. 0, -2, it comes here somewhat. Again ये तीनों भी पॉइंट्स एक ही लाइन में आने चाहिए. अगेन जहाँ पे भी स्पेस मिलता है वहाँ पे राइट डाउन दैट सेकेंड इक्वेशन, जो अपनी इक्वेशन 1 and 2 फॉर्म के राइट. दिस इज वे टू रिप्रेजेंट. इसमें स्केल वगैरह नॉट नीडेड, कोई प्रॉब्लम. अपने सॉल्यूशन ही नहीं फाइंड कर रहे तो सिंपली दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट ग्राफिकल सिचुएशन. दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल सिचुएशन. ग्राफिकल सिचुएशन में सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके रखना, बिकॉज रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली ऐसा बताया, या ज्योमेट्रिकली भी बोलते हैं. तो इतना ही ड्रॉ करके रखना, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन. और ये दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? एट लॉन्ग डिस्टेंस. तो वो तो पॉसिबल नहीं कि दोनों ग्राफ को इंटरसेक्ट करना. तो ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ ऐसे ही देते हैं आपको, या ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके रख देना. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1. फर्स्ट एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था. गॉट इट? इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसके सॉल्यूशंस में आंसर्स दे दूंगा. राइट, ओके. ये वीडियोस की कमेंट सेक्शन जो रहेगा, जस्ट यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन, आई विल आंसर इट. ओके, नाउ सेकेंड 3 questions are there. I will explain the second. I am not going to draw the graph for second, only how to form the equations. उसमें भी वही करना. graphical situation means उसको geometrical situation. Second question, the coach of a cricket team buys 3 bats. अब यहाँ quantities क्या है? bat से related है and ball से related. Means number of bats, number of balls. Number of bats x consider करो, number of balls y consider. The second question, this is the second question of exercise number 3.1. 3.1. 3 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 comma 9 comma 10 comma 11 comma 12 comma 13 comma 14 comma 15 comma 16 comma 17 comma 18 comma 19 comma 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
The coach of a cricket team buys 3 bats. Up a Just wait. This is related to cost. Huh? Sorry, that is cost of one bat. You can take cost of one bat be x and cost of one ball be y. This is not numbers related equation. Actually the coach of a cricket team buys 3 bats. 3 bats तो दिए नहीं, इसको अपन x नंबर कैसे कंसिडर करें? तो cost of one bat rupees x and rupees y. Up by first condition. According to first condition, what is given? 3 bats की cost. 3 bats की cost 3x because cost of one bat is x rupees है. तो 3 bats की कितनी? 3 into x divided by 1 means what? 3x. That's why we are going to consider as a 3x. And 6 balls means 6y. That is equals to 3900. इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ग्राफ इजी हो जाएगा थोड़ा. इसको 3 से सभी नंबर्स को 3 से डिवाइड हो सकता है जस्ट. Is equals to 1300. This is the first equation. Remember one thing, when you are going to draw write table of values, in that case x and y की वैल्यू 100 के मल्टीपल में कंसिडर कर. ऐसा मत कंसिडर करना कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आई फिर, राइट? x 1 किया तो फिर 1299 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे डोंट कंसिडर सच वैल्यूज, राइट? तो 100 के मल्टीपल लेना. ये जो नंबर रहता है ना कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के बेसिस पे आप डिसाइड करना कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो इसको अपन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 1300 माइनस 2y लिख लेना, ठीक है? इसे इक्वेशन चाहिए तो आप 1 दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं. फ्रॉम लेटर यू कैन ट्रांसपोज दैट टर्म. ये अलजेब्रिक सिचुएशन है, ये अलजेब्रिक सिचुएशन. नाउ जैसे y की वैल्यू अपन 500 लेंगे सपोज, तो 1000 होगा तो 300 आ जाए. मीन्स x अपन y की वैल्यू चूज, राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके लिए चूज करना डिजायर्ड वैल्यू. अगर सपोज 500 लिया तो 500 इंटू 2000 तो 1300 माइनस 1000 विल बी 300. तो ये वैल्यूज 100 के मल्टीपल में आ रहे, तो ऐसे वैल्यू चूज करना, 1 2 चूज नहीं करना ऐसे केस, ठीक है? और दूसरी वैल्यू सपोज आपने इसमें 600 लिया, y की वैल्यू अगर 600 चूज किया, ये डिजायर्ड वैल्यू है, अपन मन से ले लेना. तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू रहती है x की वैल्यू, बिकॉज x के इन टर्म्स में है ना. If we put the value of y as a 600, 2 into 600 it will be 1200. Subtract करो 100, again 100 के multiple में आते हैं. Okay. Now secondly, by second condition. By second condition, what is that second condition? Later she buys another bat. Another bat means one bat only. One bat, that is 1x. 3 more balls means 3y. Total cost टुगेदर कॉस्ट इज दिस इज 1300. 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसलिए x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300. ट्रांसपोज दिस, इट विल बी 1300 माइनस 3y. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. अगेन चूज द डिजायर्ड वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू अपन कौन से मन से वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन चूज द वैल्यू ऑफ y इन सच वे दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y ज़्यादा बिग नहीं होना चाहिए, नियरली होना चाहिए 100 की मल्टी. सपोज यहाँ पे अगर मैंने 400 लिया तो 400 इंटू 3 1200, 1300 माइनस 1200 इट बिकम्स 100. तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी. ओके. नाउ दिस इज द सेकंड इक्वेशन. दिस इज अलजेब्रिक सिचुएशन. अब इनके ग्राफ ड्रॉ करना. ये दोनों ग्राफ्स ड्रॉ करने के बाद में ये ग्राफ सपोज ये अपन इनके ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं, राइट? तो इनका भी इंटरसेक्शन या कुछ भी आने, तो अपनी इंटरसेक्शन से रिलेटेड नहीं, तो आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड करना, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके रखना. दैट इज ग्राफिकल या ज्योमेट्रिक सिचुएशन. गॉट इट? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ इट. ट्राई फॉर इट. ऑलरेडी आई हैव फॉर्म्ड द इक्वेशंस एंड ट्राई फॉर दैट. नाउ we'll take the third question. Third question. The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes. अब apple and grapes है. Let the cost of 1 kg grapes be rupees x and the cost of 1 kg apple be rupees y. अब by first condition वो simple रहते cost वाली. The cost of 2
kg एप्पल्स बताया, ठीक है। आप पहले एप्पल्स को सपोज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वाई पहले आएगा, फिर एप्पल है और इसको ग्रेप्स कंसिडर करें। तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट 2x एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट 1y, तो 1 तो लिखते नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, कोएफिशिएंट 1 क्या लिखेंगे, 1y, दैट इज टोटल कॉस्ट इज ₹160। और इसमें है ना x वाले कोएफिशिएंट इसका है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको y को कीप एज इट इज, तो 160 माइनस 2x फ्रॉम द टेबल ऑफ वैल्यूज, इसका टेबल ऑफ वैल्यूज निकाल लेना। फिर अगेन x y x y, अब जो अपन x की वैल्यू जो चूज करेंगे वो 100 के मल्टीपल में ले लो आप, बिकॉज यहाँ 160 है, आप 50 भी ले सकते, 50 के मल्टीपल में लो। अब 50 पुट किया, 2 इंटू 50 दैट इज 100, मतलब अपन x की वैल्यू डिजायर्ड वैल्यू, यहाँ राइट हैंड साइड में वेरिएबल इज x, दैट्स व्हाई चूज द वैल्यू, दैट इज टेक द वैल्यू ऑफ x एज अ डिजायर्ड वैल्यू। अगर x की वैल्यू 50 लिया, 2 इंटू 50 100, 160 माइनस 100 दैट विल बी 60। नेक्स्ट चूज द वैल्यू ऑफ दिस इज 100, x की वैल्यू अपने 100 चूज किया, सपोज इट विल बी माइनस 200 प्लस 160 दैट गिव्स यू माइनस 40। नो प्रॉब्लम, नेगेटिव वैल्यूज आते हैं, रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, जस्ट इट कैन कम, लेकिन एक्चुअल आंसर जो रहता है इनका इंटरसेक्शन डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, और ये जो आंसर्स रहते हैं वो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल का रहता है और ये कॉस्ट ऑफ 1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट, ये तो रेफरेंस पॉइंट नेगेटिव आ सकता नहीं, यहाँ कहीं पे भी नेगेटिव आ सकता, इस साइड में भी नेगेटिव रहता है, तो वाई शुड वरी फॉर दैट। तो ये दो कंसिडर, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव लेना, कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव लेना, इट्स नॉट कंडीशनल। अब x की वैल्यू सपोज इफ वी टेक x की वैल्यू 50 अगर चूज किया अपन ने, 50 ऑलरेडी, x की वैल्यू 50 लिया, दूसरी कोई वैल्यू 150 लो, राइट, ये 0 भी ले सकते हैं, एक्सिस पे आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर x की वैल्यू 0 लिया, ऐसा मत सोचो कि डिफरेंस आ रहा है, ये 0 अगर रहा तो एक्सिस पे लाइक रहेगा ना, तो इसलिए नो टेंशन कि 0 लिया तो कोई प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे 160 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स अपन, तो 50, 60, नेक्स्ट की वैल्यू 100 लिए, 100 200 तो माइनस 40, तो 100, माइनस 40 एंड लास्ट वन 0, 160. You can draw the graph for it. This is by the first condition. Now for the second, by the second condition. Yeah, according to second condition. From first condition, second condition, you can write anything. After a month, the cost of 4 kg apple means 4x and 2 kg grapes, 2y, that is equals to 300. You can divide it by 2 because simplification होता है, तो 2x plus y, we are dividing this by 2, this by 2. You have to divide it by all terms by the same number, क्योंकि common factor रहता है वो, that is 150. अब इसमें भी again we are going to transpose x term, that is 150 minus 2x. Now table of values easily you can find. Same way में find करना है x, y, x, y. X की value again if we take 100, y comes minus 50 because 100 into 2 minus 200 or plus 150, तो minus 50. If we take the value of x as a suppose 50, it comes 50, 52 is 100, 150 minus 100 that gives 50, and if we take the value as a suppose again 0, you can take, this comes 150. तो 100, minus 50, 50, 50 and 0, 150. So this way just plot these points and draw the graph. Graph ही draw करना, उसका solutions find नहीं करना, right? We'll see the next exercise or explanation before the next exercise in the next video. Thank you.